अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, I am Tariq sir. Today we will learn a poem, Don't Give Up. Dear students, first of the all, let me congratulate you all students. सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को मुबारकबादी देना चाहता हूँ because you all students have been promoted in standard 6. Last year you were in standard 5th and this year you are in standard 6. So dear students, here what I am going to teach you, I will send you in WhatsApp group. First of the all, let me explain you the poem. This is the poem, Don't Give Up. Do you people understand by the title Don't Give Up? आप लोगों को इस टाइटल से कुछ समझ में आया? डोंट गिव अप का मतलब क्या होता है? डोंट गिव अप का मतलब होता है आप कभी भी हिम्मत मत हारो, आप कभी भी हिम्मत मत हारो, है ना? डोंट गिव अप, कुछ भी हो जाए आप हिम्मत मत हारो। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग, कोशिश करते रहो। ट्राई ट्राई ट्राई, कीप ट्राइंग, है ना? एंड डोंट क्राई, कीप ट्राई, डोंट क्राई। सो द पोएम इज अ वेरी मोटिवेशनल पोएम। ये पोएम बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है स्टूडेंट्स। सो लेट मी स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन of this poem, Don't Give Up. Don't give up. You can see here in title D, G and U is written in capital. कैपिटल में लिखा है टाइटल में इट्स हैपन। टाइटल के अंदर आप पहले जो भी वर्ड्स है उसके पहले लेटर को आप कैपिटल में लिख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट won, if you have tried and have not won, if you have tried and have not won, never stop for crying, never stop for crying. If you have tried and have not won, never stop for crying. अगर आपने कोशिश की है और आपकी कोशिश में कामयाब नहीं हुए तो कोई बात नहीं, रोने की ज़रूरत नहीं है। What poet wants to tell you? Poet wants to tell you, if so many times you have tried, so many times you have worked very hard and you have not succeeded, not won मतलब you have not succeeded, so no matter, don't worry, don't stop for crying. रोने के लिए आप अपना वक्त ज़ाय मत करो, ठीक है? आप रोएंगे तो वक्त ज़ाय होगा and it will give you negative impact. It will give you negative impact. Effect will come negative. So what poet wants to tell you? Whatever you have done, keep trying. If you have tried and the result is not the way you wanted, जो रिजल्ट आपको चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आया, आप कामयाब नहीं हुए, so don't worry, never stop for crying. If you have tried and have not won, never stop for crying. All that's great and good is done. All that's great and good is done just by patient trying. What poet says in next line? आपको समझा रहे, all that's great and good is done just by patient trying. Whatever great and good thing is happened in the past, whatever achievement, whatever marvelous and jubilant work has been done in the past, it was happened just because of patiently trying. जितने भी बड़े बड़े काम और कारनामे दुनिया में हुए हैं उसका वजूद क्यों हुआ, वो कारनामे कैसे हो पाए? सिर्फ और सिर्फ सब्र के साथ,
कोशिश करने से है। पेशेंट ट्राइंग मतलब सब्र के साथ कोशिश करना, है ना। इसको बोलते हैं स्ट्राइविंग। क्या बोलते हैं? स्ट्राइविंग हार्ड, कंटिन्यूस एफर्ट्स, persistently trying, है ना। तो जितने भी ग्रेट एंड गुड वर्क हैज़ बीन डन इन द पास्ट, जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं ना पास्ट में, इट वॉज हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ पेशेंट ट्राइंग, कंटिन्यूस एफर्ट्स। बड़े बड़े कारनामे जितने भी हुए हैं वो सब के सब क्यों हुए हैं? बिकॉज ऑफ पेशेंट ट्राइंग। ठीक है। सो फर्स्ट स्टैंजा टीचर्स, फर्स्ट स्टैंजा अपने को क्या सिखा रहा है? व्हाट फर्स्ट स्टैंजा's moral, what is the message in first stanza? The message and the moral of the first stanza is don't give up, simply don't give up. If you have tried, if you have worked hard and the results is not in favor and the result is in not favor, you have not won, so please and please don't wait, don't stop, don't give up, don't cry, because whatever achievement, whatever successful, great and good work you see in the world, it is happened because of patient trying, because of continuous efforts, because of persistence। ठीक है। मुसलसल काम करने की वजह से ही कामयाबी मिलती है। आप अगर कामयाबी के लिए मेहनत कर रहे हो तो अगर कामयाबी नहीं मिली तो आप उम्मीद मत छोड़ो और रोने की और फिक्र करने की और कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। In second stanza, it's a very good examples for all of us। सेकेंड स्टेंजा में हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स है। आप सभी लोगों ने अपने सराउंडिंग में चिड़िया के बच्चे को देखा होगा, कबूतर के बच्चे को। यू मस्ट हैव सीन द यंग बर्ड्स इन योर सराउंडिंग। व्हाट दे डू इनिशियली, देयर पेरेंट्स टीच देम हाउ टू फ्लाई। जो चिड़िया और कबूतर होते हैं ना, उनके बच्चे उनको उड़ना सिखाते हैं। सो व्हाट हैपन? थ्रो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल्स। कोई भी यंग बर्ड्स हो, छोटा बच्चा हो, वो जब स्टार्ट करता है उड़ना, व्हेन दे स्टार्ट फ्लाइंग, व्हेन दे ट्राई फ्लाइंग, when they take first step towards the flying, they fall। वो गिर जाती बेचारे। कोई भी परिंदा, छोटा परिंदा, वो गिर जाते। वो क्या होते हैं? गिर जाते। Still their wings grow stronger। देखो, गिरने के बाद में उनके जो पर है ना, वो कमज़ोर नहीं होते, वो grow stronger, grow stronger, stronger होते जाते, stronger होते जाते, मजबूत होते जाते, मजबूत होते जाते। So what the message is here? If you flop in your efforts, if you have not succeeded, you have not achieved what you have won, so don't give up। जैसे छोटा परिंदा जब वो उड़ने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है, लेकिन जितनी बार भी वो गिरता है हमको लगता है वो जख्मी हो रहा है। It is not injured, is not getting hurt, it's getting stronger in every attempt। हर कोशिश में वो मजबूत होता है, हर कोशिश में वो क्या होता है? ग्रो स्ट्रॉन्गर। एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल स्ट्रॉन्गर, एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल स्ट्रॉन्गर, एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल स्ट्रॉन्गर, है ना। लिटिल longer, little longer। So first they try and they fly for short distance, then again they fly and they tried, they flew for little bit long distance। Once they try and they tried and they tried, जैसे वो कोशिश करते हैं, उड़ते हैं उड़ते हैं उड़ते हैं, तो वो धीरे 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 उनकी जो डेस्टिनेशन होता है, जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, वो क्या होती है? लंबी होती जाती है। तो परिंदे का बच्चा जब उड़ने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है, लेकिन जैसे ही वो गिरता है तो वो हमको लग रहा है वो ज़ख्मी हो रहा है,
वो इंजर्ड हो रहा है, वो हर्ट हो रहा है, बट इट इज़ नॉट दैट। वो क्या हो रहा है, उनके पर मजबूत हो रहे, और जब नेक्स्ट टाइम वो ट्राई करते हैं तो वो क्या होता है, दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर, बिकॉज वो गिरे तो उनका पर मजबूत हुआ ना, तो अब वो थोड़ा लंबा डिस्टेंस तय करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव लर्न इन दिस पोएम, वी हैव लर्न इन दिस पोएम, whenever you tried and you did not succeed, you don't give up, you keep trying, because if you are keep trying, you will get more achievement, you will get more success, like a small bird, like a young bird. When the young birds flying, when young birds start their flying, they fell down, but we see once they fell down, they get up again. They get up again, वो वापस उठते हैं, and they again try to fly, and the next time their distance is quite longer than earlier. जो पहले उड़ते हैं उनसे अब उनकी जो डिस्टेंस है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इन these two lines, what is a very sensational, very motivational message, and the message is keep trying, don't give up, don't lose your faith, उम्मीद मत हारो, उम्मीद का दामन मत छोड़ो, कोशिश करते रहो, बिकॉज मंजिल किसको मिलती है, मंजिल किसको मिलती है, जो कोशिश करता है, और कोशिश करने वाले को ही मंजिल मिलती है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर ऑल्सो।